Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today I am going to discuss the concept of depreciation, which is related to non-current assets. This is my first lecture related to depreciation. I have divided uh, depreciation lectures in three parts. I will try to cover the whole concept of depreciation, all aspect of depreciations in these three lectures. This uh, this is the first lecture of this series. In this lecture, I will explain the basic definitions and concepts related to the depreciation. You can say theoretical aspect of depreciation will be discussed in this lecture. Now, move to the definition of non-current asset, because before understanding of depreciation, you should know the non-current assets, because depreciation is fully related to the non-current assets. Current assets will not depreciate, only non-current assets will depreciate. So first I am going to discuss the definition or revising the definition of non-current assets, because I have discussed the definition in many other lectures. But currently non-current assets are relevant to this topic. So I am first going to explain the definition of non-current assets. Non-current assets. Non-current assets are the assets owned by the business for more than 1 year. I am going to repeat the sentence. Non-current assets are the assets are owned by the business for more than 1 year and acquired for business use, not for resale purpose. Means that business bought these assets to use within the business to run the business activities, not for resale purpose. All assets which are bought by the business for resale purpose will be recorded as current assets. Only those assets which are owned by the business for more than 1 year and not for resale purpose are non-current assets. Again, I am focusing the word of and. These two conditions. First, business owned the asset for more than 1 year, and second condition is acquired not for resale purpose but for the use within the business. If an asset fulfill these two conditions, then we will consider it as non-current asset. If an asset did not fulfill the one condition, then we will consider it as current assets. मतलब कहने का मेरा ये है बेटा कि कोई भी एसेट होगा जो बिजनेस का एसेट होगा वो इन दो कंडीशंस को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो देन हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ नॉन करंट एसेट्स। अगर वो इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी कर रहा है और दूसरी नहीं पूरी कर रहा, तो वो करंट एसेट कैटेगराइज हो जाएगा, वो नॉन करंट एसेट नहीं होगा। और वो दो कंडीशन में फिर रिपीट कर रहा हूं कि बिजनेस इसको ओन करे 1 साल से ज्यादा अरसा, मतलब बिजनेस के पास ये रहे फॉर मोर देन 1 ईयर, और जब बिजनेस ने उसको बाय किया हो तो रीसेल पर्पस ना हो कि मैंने इसको आगे बेच के प्रॉफिट कमाना है, बल्कि बिजनेस के अंदर यूज करना है। तो ये दो कंडीशंस मीट होंगी तो वो नॉन करंट एसेट होगा। अब नॉन करंट एसेट तो हमने उसकी डेफिनेशन देख ली। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। Before discussing the cost of non-current assets, I am writing the few examples of non-current assets to make it more clear for you. फर्स्ट एग्जांपल बिल्डिंग, यानी जो आपके बिल्डिंग होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, जहां आपने ऑफिस बनाया है या आपने फैक्ट्री लगाई है, वो बिल्डिंग आपका नॉन करंट एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीन्स या इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, वो भी नॉन करंट एसेट्स हैं। कंप्यूटर्स, जो बिजनेस के अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या मोटर व्हीकल्स यूज हो रही हैं बिजनेस में, तो दीज आर ऑल नॉन करंट एसेट्स।
Now, I, now I am going to discuss the cost of non-current assets. वट इज कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट के कोई भी आपका नॉन करंट एसेट है उसकी वैल्यू क्या होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें कैसे पता चलेगी या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा आई एम डिस्कसिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट्स प्लस कैरेज इनवर्ड मीन्स टू ब्रिंग द एसेट टू बिजनेस लोकेशन जितना भी हम कैरेज पे करेंगे वो उसकी परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा परचेज प्राइस प्लस कैरेज इनवर्ड ऑन नॉन करंट एसेट जो होगा ये कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट होगी इसके अलावा अदर देन दिस या अदर देन दीज टू आइटम्स यानी परचेज प्राइस एंड कैरेज इनवर्ड एनी अदर एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता है मैंने वो एक और लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट एसेट विल आल्सो इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ दैट नॉन करंट एसेट हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी बाय की उसकी परचेज प्राइस थी $50,000 फिर आपने उसको अपने फैक्ट्री तक जो लाने का आपको कैरेज पड़ा वो पड़ा आपको $2,000 का तो $50,000 इज द कॉस्ट एंड $2,000 इज द कैरेज इनवर्ड तो टोटल वैल्यू होगी आपकी 52,000 उस मशीनरी की जो आपने बाय की उसके अलावा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उस पे होंगे वो भी उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ठीक है डेफिनेशन तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला लेक्चर देख लीजिएगा उसको में आपको डिटेल समझ आ जाएगी इसमें मैं आप एग्जांपल बता देता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट है कि आपने वो मशीनरी लाया आपने इंस्टॉल किया उसकी इंस्टॉलेशन पे आपके कोई एक्सपेंडिचर हुए तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे these expenditures will also include in the cost of non-current assets and any improvement एक्सपेंडिचर के उस मशीन को या उस नॉन करंट एसेट को आपने इंप्रूव किया और उस पर कोई आपका एक्सपेंडिचर हो गया तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे यहां से फिर हम इसको अगर हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स को देखें तो वो परचेज प्राइस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर्स तो if we add all four items then we will get cost of non-current assets so for calculation of non-current asset you should check the purchase price carriage inward installation cost and improvement expenditures after addition of these four items you will get the cost of non-current assets and that cost will depreciate according to uh, business policy जो कि मैं बाद में अभी आपसे डिस्कस करता हूं नाउ मूव टू द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हाट इज द डेप्रिसिएशन and then I will discuss its causes first I am going to explain the definition of depreciation the decrease in the value of non-current asset again the decrease in the value of non-current assets with the passage of time due to its usage the decrease in the value of non-current asset with the passage of time and due to its usage that is called depreciation for example cost of non-current asset was $20,000 after 10 years sold for 4,000 sorry we use that non-current asset for 10 years and after 10 years we will sell it for $4,000 so then the difference between 20,000 and 4,000 is 16,000 which is depreciation that is this is the decrease in the value and which is called depreciation again I am going to repeat the definition decrease in the value of non-current asset with the passage of time and its usage is called depreciation कि जितना हम उसको यूज कर लेंगे और उस टाइम पीरियड के दरमियान जितनी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी वो डेप्रिसिएशन होगी उस एसेट की
अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली कि कॉस्ट ऑफ प्लांट मैंने लिया वो $20,000 का था, मींस कि वो बाय द प्लांट with the value we buy the plant cost $20,000 और उसे हमने 10 ईयर यूज किया और उसके बाद हमने उसे 4,000 का सेल कर दिया। तो 20,000 का हमने बाय किया था, 4,000 का सेल कर दिया आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में जितना वैल्यू में रिड्यूस हुआ वो दैट इज $16,000 और ये उस प्लांट की टोटल डेप्रीसिएशन होगी। दिस इज द टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ दैट प्लांट फॉर 10 ईयर्स। You bought for 20,000 and sold for 4,000 after 10 years, and the decrease in the value is 16,000, which is called total depreciation of that plant in 10 years. कि उसकी जो 10 years लाइफ थी उसमें उसकी कितनी डेप्रीसिएशन बन गई। अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कॉजेज क्या होती हैं डेप्रीसिएशन की। कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन में सबसे पहले वेयर एंड टेयर आ जाती है कि टूट फूट हो गई विद द विद यूजेज की वजह से उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, खराब होती रहती है, तो उसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू फॉल करती रहती है। डिप्लीशन, ये नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होता है, डिप्लीट होते जाते हैं, जैसे जैसे वो खत्म होते जाएंगे तो वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। आपने माइनिंग की हुई है, वहां से आप कोई मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका आयरन वहां से एक्सट्रैक्ट होता जाएगा वैसे वैसे उस रिसोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पे आयरन के रिजर्व्स कम होते जाएंगे। या आपका कोई आप किसी जगह से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सम प्लेस, तो अगर आपका ऑयल आहिस्ता आहिस्ता आप यूज करते जाते हैं और वहां ऑयल कम होता जाएगा तो उस साथ साथ उस जगह की वर्थ भी कम होती जाएगी। थर्ड, लैप्स ऑफ टाइम। टाइम इटसेल्फ जो है किसी भी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। मतलब आप एक एसेट को लेते हैं, फिर उसको 2 ईयर्स यूज करते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर थर्ड ईयर आता है तो कम और कम हो जाती है, 4 ईयर के बाद और कम हो जाती है। इसी तरह चलते चलते जितना आप यूज करते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे आई हैव टेकन द एग्जाम्पल इन डेफिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, तो वहां पे भी यही था कि 10 ईयर्स के बाद मैंने आपको कहा था कि उसकी वैल्यू 4,000 20,000 का था, तो वो 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू 4,000 रहेगी और 16,000 का जो डिक्रीज था वो डेप्रीसिएशन। तो ये लैप्स ऑफ टाइम हो गया। वेदर एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, वेदर जो है ये भी आपके, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स को नेगेटिव इंपैक्ट समटाइम करता है, जिससे उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब देखें, आपके पास कोई भी मेटल का बेस्ड मशीनरी है जिसमें मेटल यूज हुआ है, तो वेदर की चेंजेस की, रेनी सीजन की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से उसकी वर्थ जो है वो दूसरा क्या कहते हैं कम होती रहती है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी वर्थ कम होती है और वो अपनी वैल्यू लूज कर देता है। तो ये वेदर की वजह से उस एसेट की डेप्रीसिएशन होगी। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। आई एम लिविंग इन लाहौर, और जो लोग कराची में रह रहे हैं उनको ज्यादा मेरे से ज्यादा अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि कराची एक के साथ सी पोर्ट है। तो ऐसे एरियाज जहां सी के क्लोज जो पॉपुलेशंस होती हैं, वहां पे कंटिन्यूसली उस इन्वायरमेंट में जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, स्पेशली जो आपके मेटल बेस एसेट्स होते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है, उनकी वैल्यू जल्दी से डेटेरियोरेट करती रहती है। इसीलिए कराची में जो है सेकेंड हैंड कार्स की वैल्यू कम होती है। उसकी रीजन वहां के वेदर की है, वेदर की वजह से वो एसेट्स अपनी वैल्यू ज्यादा तेजी से लूज करते हैं। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आल्सो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये तो बहुत कॉमन है, यूर आप इजीली इसको देख सकते हैं। न्यू मॉडल ऑफ आईफोन आता है तो पुराने मॉडल की वैल्यू कम हो जाती है। न्यू मॉडल ऑफ टीवी आता है तो पुराने मॉडल की वैल्यू कम हो जाती है। न्यू दूसरा मॉडल आता है आपके टैबलेट्स का, तो पुराने टैबलेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो वेन एवर टेक्नोलॉजी चेंज, तो उसकी वजह से जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ रिड्यूस हो जाएगी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आइटम्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी।
कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू रिड्यूस होगी। एंड लास्ट वन इज द इकोनॉमिक कंडीशन और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर मार्केट में उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब उसमें अब उसकी, आपको पता मार्केट में वैल्यू जो है एसेट्स की वो डिमांड के साथ सेटल होती है, डिमांड एंड सप्लाई, वो एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, वो कहीं और चल के हम डिस्कस करेंगे या आप लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो अगर उसकी वैल्यू मार्केट में रिड्यूस होती जाती है उस एसेट की, तो ऑटोमेटिकली आपके एसेट की भी वैल्यू फॉल करती जाएगी। या इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह की हो गई हैं, वर्सन इकोनॉमिक कंडीशन है, रिसेशन चल रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट्स कोई बाय नहीं करना चाहता, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट जो है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से या मार्केट वैल्यू की वजह से, तो इस वजह से भी एसेट डेप्रीशिएट हो जाते हैं कि हम उनकी वर्थ कम कर देते हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दूं कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, दे डू नॉट वांट टू बाय प्रॉपर्टी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रॉपर्टी की मार्केट में रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो डेप्रीशिएट होना शुरू हो गई है। कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स विद मार्केट फैक्टर्स, यानी इकोनॉमिक कंडीशंस या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट एसेट इन द मार्केट, तो उसकी वजह से आपका जो फॉल आता है आपकी वैल्यू में, यानी एसेट्स की वैल्यू में, तो वो डेप्रीसिएशन होगा। ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन। अब सेकंड आता है कि हम आखिर डेप्रीसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, व्हाई वी चार्ज डेप्रीसिएशन। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ डेप्रीसिएशन। फर्स्ट वन, to calculate the true cost of the production or business running cost, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली हुई कितनी है या बिजनेस की रनिंग कॉस्ट क्या है। देखिए, आपने एक नॉन करंट एसेट मशीनरी बाय की, उससे आपने चीजें प्रोड्यूस की तो ऑब्वियसली दूसरा आपकी मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हुई विद दैट प्रोडक्शन। तो जब आप उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर वो रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट या मशीन भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप की कॉस्ट इंकर हुई ना। वो डिक्रीज इन वैल्यू या वो जो वैल्यू आपने नॉन करंट एसेट की यूज की, वो उसी प्रोडक्शन के लिए आपने यूज की ना, तो वो भी आपके पास पता होनी चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करेंगे डेप्रीसिएशन को, तो तभी हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकेंगे, क्योंकि वो जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी है वो भी हम उसकी बाकी जो कॉस्ट हैं उसकी गुड्स की प्रोड्यूस करने की उनमें ऐड करेंगे, तो तभी हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। इसी तरह इफ यू वांट टू कैलकुलेट द बिजनेस रनिंग कॉस्ट, के बिजनेस को रन करने के लिए कितने एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ते हैं, तो उसमें बाकी बिल्स वगैरह के साथ साथ आपको डेप्रीसिएशन भी चाहिए होगी, कि जितनी आपकी एसेट्स की वैल्यू का लॉस हुआ है वो भी तो आपकी एक कॉस्ट है, वो भी आपको पता होगी, तो तभी आप टोटल कॉस्ट आप बिजनेस की रनिंग की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकेंगे। और जब आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे तो तभी आप अपनी इनकम्स को भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली इनकम्स या प्रॉफिट्स कितने हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कॉस्ट का होना जरूरी है, तो कॉस्ट आपके पास टोटल आएगी, तो देन यू कैन कैलकुलेट रियल प्रॉफिट्स। और थर्ड, आपकी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ बिजनेस ऑपरेटर्स, एज बिजनेस रनर, तो आपने ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना होता है कि रियलिटी क्या है। अगर हम परचेज प्राइस पे ही एसेट्स को बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते रहेंगे, तो रियल फिगर तो नहीं समझ आएगी ना बिजनेस की। हालांकि वो एसेट जो हमने 50,000 का बाय किया था, आफ्टर 3 इयर्स वो 20,000 का रह गया है। तो हम तो उसे 50,000 का अगर लिखी जाएंगे अपनी बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो तो अनफेयर हो जाएगा। तो हमें डेप्रीशिएट करके, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके, उसमें से रिमूव करके
फेयर व्यू शो करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली अब हमारे पास जो एसेट्स हैं उनकी क्या वर्थ है। उसके बाद लीगल कंप्लायंसेस, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, लीगल कंप्लायंसेस यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं आपके पास कि लीगली आपको कहा जाता है, लॉज में लिखा हुआ है कि यू शुड डेप्रिशिएट योर नॉन करंट एसेट्स ईच ईयर। एक फेयर डेप्रिसिएशन उन पे लाजमी चार्ज करें, ताकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सके। उसके बाद इस डेप्रिसिएशन का बिजनेस के पास एक और पर्पस होता है कि उसके पास एक एम्पल टाइम बन जाता है प्लान करने के लिए और फंड्स अरेंज करने के लिए, ताकि वो उस एसेट को उसकी लाइफ के बाद रिप्लेस कर सके। मतलब आपने डेप्रिशिएट जितना करते जा रहे हैं, बिजनेस क्या करता है कि हर साल उतनी अमाउंट एक रिजर्व में भी अपने पास जनरेट करना शुरू कर देता है। ये प्लान हो सकता है, बट डेप्रिसिएशन इटसेल्फ पर्पस नहीं है कि वो लाजमी ये करेगा, लेकिन इसकी वजह से बिजनेस अपने प्लान कर सकता है कि अपने पास एक सरप्लस फंड अरेंज कर ले, कि साथ साथ वो मेंटेन करता रहे, ताकि जब उसकी लाइफ खत्म हो तो फिर उसके पास उतना फंड आ जाए कि वो उसको इजीली रिप्लेस कर सके। यानी ये आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए भी हेल्प कर सकती है डेप्रिसिएशन, कि आपको आइडिया होता जाए कि आपका एसेट कितनी वैल्यू लूज करता जा रहा है, ताकि आप उतने फंड्स अरेंज कर लें, जब आपको नया एसेट लेना पड़े तो आप आसानी से ले सकें, आपके ऊपर दूसरा क्या कहते हैं, सडन बर्डन ना क्रिएट हो। उसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेसेस को टैक्स लायबिलिटी में रिलीफ देती है, क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और प्रॉफिट्स कम होने की वजह से आपको फिर टैक्स भी कम चार्ज होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन और रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी आपकी कम कैलकुलेट होगी। मतलब जो परसेंटेज ऑफ टैक्स कैलकुलेट होती है वो प्रॉफिट पे होती है ना, तो जब आपका प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स भी कम कैलकुलेट होगा। तो इसकी वजह से बिजनेस को टैक्स लायबिलिटी में भी रिलीफ मिल जाता है, कि वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले। हाँ, आपने नॉन करंट एसेट बाय किया, उस पर आपको कोई टैक्स रिलीफ नहीं आप ले सकते जब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करते। तो आप हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं अपने एक्सपेंसेस में, उससे आपकी प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो उस पे जो आपको टैक्स पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे और उस पे आपको टैक्स ज्यादा चार्ज करेंगे। नो, फैक्टर्स इफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, वो फैक्टर्स जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो फैक्टर कौन से हैं जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। तो उनमें आ जाते हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट, कि आपके एसेट की कॉस्ट क्या है, कि ओरिजिनल कॉस्ट, जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतनी आपकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज होगी। देन यूजफुल लाइफ, कि कितनी उसकी लाइफ है, कितने साल वो आपके पास रहेगा। जितने साल ज्यादा होंगे तो ईच ईयर आपकी डेप्रिसिएशन का जो है वो कैलकुलेशन वो कम होगी। कॉस्ट ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ के कितने साल आपके पास रहेगा तो उतने सालों की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। देन लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, अगर लॉ की तरफ से क्या इम्पोजिशन है कि आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं,
तो ये भी आपकी डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करेगा। रेजिडियल वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू कितनी बच जाती है। देखें, जैसे आई हैव टेकन द एग्जांपल इन द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कि हमने उसको 20,000 का बाय किया और जब हमने उसकी रेजिडियल वैल्यू कहते हैं जिस वैल्यू पे हम उसे सेल कर दें, तो सेलिंग वैल्यू थी उसकी 4,000, तो 20,000 और 4,000 के दरमियान था 16,000 का डिफरेंस, वो डेप्रिसिएशन थी। अगर यही उसकी सेलिंग वैल्यू होती 6,000, तो 20,000 और 6,000 के दरमियान जो डिफरेंस होता वो 14,000 का होता, तो उसकी डेप्रिसिएशन 14,000 होती। तो रेजिडियल वैल्यू या उसकी सेलिंग वैल्यू जो आफ्टर यूजफुल लाइफ होती है, यानी उसकी लाइफ के बाद जो सेलिंग वैल्यू होती है, तो वो अगर वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, और अगर वो वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया। क्योंकि कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू या सेलिंग वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो डेप्रिसिएशन होती है। उसके बाद रिपेयर्स, कि आपने एसेट्स की रिपेयर्स कितनी करवाई हैं। अगर बेतहाशा बहुत ज्यादा उसमें ब्रेक डाउन हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया जिसकी वजह से रिपेयर्स हुई हैं, तो उससे एसेट की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा रिड्यूस होगी। ऑब्सोलिसेंस मतलब ऑब्सलीट आपका अगर एसेट हो जाता है तो उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। अगर वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, लोग यूज कर रहे हैं, ऑब्सलीट नहीं हुआ, तो फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन कम होगी। लेकिन ऑब्सलीट हो गया तो उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। आपने उस एसेट में कितनी एडिशंस और एक्सटेंशन की हैं, मतलब उस पर कितनी फर्दर कॉस्ट इंकर की हैं, उसकी वजह से उसकी डेप्रिसिएशन भी वेरी करती जाएगी। अगर आप फर्दर एडिशंस कर लेते हैं, एक्सटेंशन कर लेते हैं, उस पर और कॉस्ट ऐड कर देते हैं उसमें, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग उसकी डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी, क्योंकि इन फर्स्ट पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन के कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो जितनी ज्यादा होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और चार्ज करेंगे। जितनी कॉस्ट ज्यादा उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा। तो एडिशंस और एक्सटेंशन की वजह से भी कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली साथ इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं यहाँ, क्योंकि पीछे रेजिडियल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू का टर्म आ गई थी, उसकी डेफिनेशन भी आपको बता दूं। रेजिडियल वैल्यू जो है बेसिकली रीसेल वैल्यू ऑफ एसेट है आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। रेजिडियल वैल्यू इज द रीसेल वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, कि उसकी यूजफुल लाइफ के बाद उस एसेट की क्या वैल्यू रह जाती है, वो उसकी रेजिडियल वैल्यू होती है, या स्क्रैप वैल्यू उसको कहते हैं। और उसके बाद यूजफुल लाइफ क्या है, नंबर ऑफ इयर्स इन विच एन एसेट रिमेन्स यूजफुल फॉर द बिजनेस, कि जितने सालों तक वो बिजनेस के लिए यूजफुल है एसेट, वो बिजनेस के इस्तेमाल में रहता है, वो उसकी यूजफुल लाइफ है। और नेट बुक वैल्यू भी यहां पे मैं आपको बता दूं, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड टोटल डेप्रीसिएशन एट दैट डेट, यानी जिस डेट पे आप नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस डेट पे जो उसकी टोटल कॉस्ट है और जितनी डेप्रीसिएशन तब तक हो चुकी है, तो उस सब को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नेट बुक वैल्यू होगी। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड टोटल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। फार्मूला इसका ये है, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन। नेट बुक वैल्यू मतलब इस वक्त बुक्स में उसकी कितनी वैल्यू है, तो जितनी डेप्रीशिएट हो गई है वो तो हम माइनस कर चुके, सब्ट्रैक्ट कर चुके, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो बेसिकली नेट बुक वैल्यू है, यानी वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन। जितनी भी डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, उस डेप्रीसिएशन चार्ज के बाद जो वैल्यू बची है वो उसकी बेसिकली नेट बुक वैल्यू है। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द डेप्रीसिएशन, यानी वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो डेप्रीसिएशन से रिलेट करते हैं, उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कि हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि नॉन करंट एसेट्स को उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो जिस पे आपने उन्हें बाय किया है। ठीक है, जिस वैल्यू पे आपने उन्हें बाय किया है उस पे रिकॉर्ड करो, ना कि उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, यानी जिस पे आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं मार्केट में ना। कि आपने इसको सिंपल समझने के लिए ये याद रखें कि जिस अमाउंट पे आपने उन्हें बाय किया, जो आपकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट है, आप उन्हें उस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद दूसरा आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है,
वो सारे के सारे आप इसी साल में इसी साल की इनकम के जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो करंट ईयर की इनकम के अगेंस्ट आप रिकॉर्ड करेंगे इन इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट की वो कॉस्ट जो डेप्रीशिएट हो गई यानी जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बन गई है करंट ईयर में, तो उसे आपको करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करना है। या इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में कहें तो रिकॉर्ड द एसेट कॉस्ट, ठीक है, जो भी आपकी एसेट कॉस्ट है उसको एलोकेट कर दें आप उसकी लाइफ के ऊपर। अगर आप उसकी जितनी भी कॉस्ट है ना, जो भी आपकी जितने का आपने बाय किया था, तो आप उसे 10 साल यूज करते हैं तो उसको आप एवरी ईयर उसमें से कुछ पोर्शन उठा के आप डेप्रीसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड करते जाएं। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। उसकी रीजन यही है क्योंकि वो यूज की वजह से ही करंट ईयर की इनकम हुई है। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एक्सपेंस इस साल का है वो इसी साल रिकॉर्ड होगा। तो इस साल की डेप्रीसिएशन आपको इसी साल ही रिकॉर्ड करनी है कि एनी जो भी कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट है वो जितनी उससे आप डेप्रीसिएशन करंट ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो वो करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि यू शुड एस्टिमेट द एक्सपेंसेस, यानी आप अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करें। आप अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू नहीं कर सकते, ओवर स्टेट नहीं कर सकते, बल्कि जितनी भी डेप्रीसिएशन आप उसे कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करें। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है द वैल्यू ऑफ एसेट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, देयरफॉर डेप्रीसिएशन is the method by which we show a more realistic value for the assets। मतलब उसके इसमें कहने का यही है जो मैंने आपको लिखा है। तो इसमें यह समझाया आपको कि एसेट्स को कभी भी ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आप ओवरस्टेट नहीं करेंगे। जितना आपने उसे यूज कर लिया, जितना उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन, तो वो आप डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। उससे आप अपने एसेट्स की वैल्यू को रीस्टेट करेंगे ताकि वो रियलिस्टिक वैल्यू पे आ जाए, जो मार्केट वैल्यू नहीं है, रियलिस्टिक वैल्यू, यानी जितना आप यूज कर चुके हैं और उसके बाद जो वर्थ उसकी बच गई है उस पे हम उसको रिकॉर्ड कर दें। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने एक एसेट बाय किया 50,000 का, आपने उसे यूज किया, उसके एक साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 40,000, यानी 10,000 का डिक्रीज हो गया। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इस 10,000 को इमीडिएटली आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, ठीक है, ताकि आपके एसेट की रियलिस्टिक वैल्यू सामने आए। अब वो 50,000 का तो नहीं है, उसमें 10,000 का डिक्रीज हो चुका है, तो रियलिस्टिक वैल्यू आ जाए। और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कुछ यही कहता है कि जितनी आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया उसको इसी साल आपने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना है। यानी जितनी आपकी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है वो आप उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। या आप उसको इस फॉर्म में देख लें कि जितना भी आपके एसेट्स की वैल्यू में, मैचिंग कॉन्सेप्ट का बता रहा हूं, कि जितना भी आपका टोटल लाइफ में एसेट्स की वैल्यू में रिड्यूस होगा उसको आप इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दें और वो हर साल उतना रिकॉर्ड करते जाएं। जैसे आपने हमने एग्जांपल ली थी 20,000 और 4,000 रीसेल वैल्यू बन गई थी उसकी, यानी उस पे सेल कर देते थे। 16,000 टोटल डेप्रीसिएशन थी फॉर 10 इयर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर हम पर ईयर निकालें तो 16,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 1600 बन जाएगी। वो 1600 हम हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि आपके जो डेप्रीसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो वो उसी साल आप उसको रिकॉर्ड करो और हर साल करते जाओ इसी तरह। एवरी ईयर की डेप्रीसिएशन आप उसी साल में रिकॉर्ड करते जाओ और टिल लाइफ ऑफ एसेट, यानी जितनी उस एसेट की लाइफ है वहां तक रिकॉर्ड करते जाओ। और उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इसमें है, वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, आगे चल के हम डेप्रीसिएशन मेथड्स पढ़ेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपने एक डेप्रीसिएशन मेथड चूज कर लिया है तो फिर आप हर साल उसी तरीके से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं है कि हर साल डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट डेप्रीसिएशन पे एप्लीकेबल इस तरह से है कि वो आपको मेथड चेंज नहीं करने देता। हिस्टोरिक कॉस्ट ये कहता है कि आपके नॉन करंट एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट को आपने कंसीडर करना है और उसी पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी एसेट की लाइफ है डेप्रीसिएशन को उस लाइफ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारी डेप्रीसिएशन एक साल नहीं चार्ज कर देनी,
क्योंकि आप हर साल उसको यूज कर रहे हैं, तो उस साल की जितनी डेप्रिसिएशन है, डिक्रीज इन वैल्यू है, वो उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट के कहने का यही है कि उसकी पूरी लाइफ पे आप इसको स्प्रेड करेंगे, एक साल सारी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ये आपको कहता है कि डेप्रिसिएशन हर हाल में कैलकुलेट करो। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप कैलकुलेट कर लिया तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। वो कहता है कि उसकी पूरी लाइफ पे उसको स्प्रेड करके रिकॉर्ड करो। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू नहीं कर सकते, उनकी डेप्रिसिएशन को आपको कैलकुलेट करना ही करना है। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपने मेथड एक दफा डेप्रिसिएशन के लिए चूज कर लिया, आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। आप कंसिस्टेंट रहेंगे उसी मेथड के साथ, आप उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते। तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में वो उसकी कैलकुलेशन की तरफ भी जाएंगे। अगर उसमें हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं डेप्रिसिएशन के, और फिर उनकी कैलकुलेशन कैसे होती हैं। और थर्ड लेक्चर में जाके हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम उनके टी अकाउंट्स या लेजर एंट्रीज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस को देखा, सेकंड लेक्चर में हम कैलकुलेशंस देखेंगे मेथड्स की, और थर्ड लेक्चर में जाके इंशाल्लाह हम फिर उनके जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे कि वो कैसे होते हैं। चलें, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।